Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the derivation of equations of motion through graphic methods. आज हम देखेंगे कि हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिक मेथड से डिराइव कर सकते हैं. फर्स्ट we must know, हमें ये पता होनी चाहिए what are the equations of the motion. Suppose a body is moving along a straight line path with a uniform acceleration. Here we can establish a relation between velocity of the body, acceleration of the body, distance traveled by the body in a particular time by a set of equations which are known as the equations of motion. There are three equations of the motion. First, V is equal to U plus AT. दूसरी, S is equal to UT plus 1/2 of AT square. And जो third one है, that is equal to V square minus U square is equal to 2AS. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, it is known as the velocity time equation, and the second one is the position time equation, and the third one is the position velocity equation. जो पहली इक्वेशन है, यहाँ पे जो V है, here V is the final velocity of the body, U is the initial velocity of the body, A is the uniform acceleration, and T is the time interval. So these are the different symbols in these equations. आज हम derive करेंगे the first equation, that is V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. It is known as the velocity time relation. आज हम देखेंगे इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय द ग्राफिक मेथड. ठीक है, तो लेट अस सी. सपोज ए बॉडी is moving along a straight line with uniform acceleration A. एक बॉडी चल रही है with uniform acceleration A. Uniform acceleration A. हाँ, लेट ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे यहाँ पे दिखाया है, इट इज द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम. तो क्योंकि यहाँ पे हमें डिराइव करनी है द एक्चुअली द वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम, तो इसको हम इसी ग्राफ से डिराइव करेंगे. Let us see how we can derive the equation, that is V is equal to U plus AT through the graphic method. Here, suppose a body is moving with uniform acceleration A. एक बॉडी चल रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इसको हमने A के बराबर रखा, स्मॉल A. लेट एट टाइम T is equal to 0, या ऐसे लिखेंगे, लेट initial velocity of a body, let initial velocity is equal to OA is equal to U at time T is equal to 0. Suppose जो इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो है OA, यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज U है. ठीक है, तो इस किस टाइम पे T is equal to 0. ठीक है, here in this case we will get a straight line AB
as shown in this figure, यहाँ पे जो ग्राफ आएगा that will be AB, क्योंकि आपने पढ़ा लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था जो कि लास्ट टाइम ग्राफ होता है जब एक बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होते हैं, इस वक्त हमारा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। यहाँ पे भी क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ए बी। नाउ while going from A to B, the velocity of the body is going on increasing continuously but at constant rate। यहाँ पे बिल्कुल जब हम A से B तक जाते हैं वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हो रही है विद द टाइम, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है by equal amounts in equal intervals of the time। यहाँ पे बिल्कुल वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली, मतलब हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट रेट। नाउ लेट final velocity is equal to final velocity जो यहाँ पे है, ये वाली वेलोसिटी, ये ओ से ई तक यानी कि सी बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू वी बट एट टाइम टी इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक टाइम लेंगे हम ओ सी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ओ सी आएगा तो टाइम टी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। एंड नाउ ड्रॉ AD perpendicular on BC AD perpendicular on BC and this BC perpendicular on OC, यानी कि इस BC के ऊपर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर AD एंड दिस BC को परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, टाइम एक्स यानी कि OX के ऊपर, ठीक है ना, या OX टाइम एक्सिस के ऊपर, ठीक है। हाँ, let angle this BAD, let एंगल BAD इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को हम थीटा के बराबर रखेंगे, ठीक है ना, विच इज सबटेंडेड एट द पॉइंट A। नाउ दिस ADB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो इसमें जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। Here the acceleration of the body will be equal to the slope of the graph which is equal to tan theta. Now acceleration A is equal to A, the acceleration of the body is equal to A is equal to slope of the graph, which is equal to tan theta। तो हम ऐसे लिखेंगे x, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू tan थीटा। आपको पता होगा दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम फिगर, अगर हम यहां देखेंगे यार a इज इक्वल टू tan थीटा, क्या हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, यार परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज AD, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू BD बाय AD, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे BD, जो BD है ना, BD किसके बराबर है, BC माइनस CD, ठीक है ना, BC
बी सी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये पोर्शन निकालेंगे डी सी, ठीक है, यहाँ सी डी डिवाइड बाई ए डी. व्हाट इज ए डी? ए डी डिवाइड बाई ए डी. दिस वो किसके बराबर आएगा? बी सी. व्हाट इज बी सी? यहां से यहां तक बी सी. इट इज फाइनल वेलोसिटी वी. यहाँ पे हमने लिखा था बी सी, यहाँ सी बी इज इक्वल टू वी, ठीक है ना, यह आएगा वी. लेकिन सी डी के बदले हम लिख सकते, देखो यहाँ पे आएगा बी सी के बदले हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी वी माइनस सी डी. सी डी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना, सी डी और ओ ए बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है बनती है यहाँ पे, तो जितना ओ ए होगा इतना, क्योंकि ओ ए किसके बराबर है? ओ ए यहाँ पे यू के बराबर है, ठीक है ना, इसके बदले यू लिखेंगे. व्हाट इज ए? ए डी. ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना, ए डी तो ओ सी बराबर है, आपको पता है ओ सी इज इक्वल टू टी, तो ए डी के बदले हम टी लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, बिकॉज सी डी किसके बराबर है? सी डी. सी डी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू यू एंड ओ ए डी किसके बराबर है? ए डी इज इक्वल टू ओ सी टी के बराबर है, ठीक है ना. तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे ए टी अपनी जगह रखेंगे, यू को यहाँ लाएंगे, इट इज माइनस यू, यहाँ जाके ये बनेगा प्लस यू इज इक्वल टू वी. दिस इज, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज दिस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, सॉरी ये ए टी है. दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी between the velocity and the time, or this the required velocity time relation which we have derived graphically from the velocity time graph, ठीक है. तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया ग्राफिक मेथड से, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. नेक्स्ट टाइम हम डिराइव करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर. इसी ग्राफ से हम इसको भी डिराइव करेंगे. Thanks for actually watching this today's video. तो आज हम इतना यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे. अल्लाह हाफिज़.